Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English of second year. This is lecture number 4. We are still uh, discussing the first lesson of this book 2, The Dying Sun. I'm your teacher Nadia Bhatt. Today I will discuss the question answers of the exercise and what is the past trend. और फिर आपके साथ थोड़े से मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी जो कि आप कह लोगे टेक्स्ट एनालिसिस के कैटेगरी में आता है या करेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर आता है. Such type of MCQ you may come across such type of MCQs in your annual exams and the entry test as well. So let's start today's lecture number 4, The Dying Sun. Answer these questions. These are 8 questions as you can see on your screen. The first one. How is it that a star seldom finds another star near it? How is it that a star seldom finds कि वो कैसे है कि एक स्टार बहुत कम दूसरे स्टार को देखता है. बेसिकली इसका आंसर आपने कैसे देना है कि because they are at a great distance from each other. आप इस तरह कर सकते हैं कि it is so because most of the stars travel through universe in complete loneliness. क्योंकि वो एक दूसरे बिल्कुल अकेला अकेला सफर करते हैं. एक तो ये रीजन है. दूसरी रीजन ये है कि because there is the distance of over 1,000,000 miles between one star and its nearest neighbor. दो रीजंस हो गई. कौन कौन सी? Because they travel in isolation, they travel in loneliness. और दूसरा because they are at the million miles, they are at million miles distance from each other. Second question क्या है? What happened when, according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came near the sun? What happened? क्या हुआ था? तो सर जेम्स जीन्स ने बिग बैंग की थ्योरी दी है. तो जब एक स्टार सन के पास आया, सूरज के पास आया, तो क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2. क्या हुआ था? When a wandering star came near the sun, it raised mountains on its surface. कि जब wandering star सूरज के पास आया था, it raised huge mountains, unimaginable mountains on the surface of the sun. और फिर जैसे जैसे वो जो वॉन्डरिंग स्टार था वो सन के पास आया, जो टाइडल पुल थी वो इतनी ग्रेट हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि अनइमेजिनेबल माउंटेन्स बनना शुरू हो गई. एंड देन व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार began to recede, the tidal pull was so great that it detached from the sun. The mountain, unimaginable mountain, detached from the sun. ये हुआ था. फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है जी? What happened when the wandering star came nearer and nearer? ये क्वेश्चन नंबर 2 and 3 जो है तकरीबन सेम ही बनते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है. What happened when the wandering star came nearer and nearer? When the wandering star came nearer and nearer the sun, it raised unimaginable mountain on the surface of the sun. As the sun began to recede, जैसे जैसे वो as the wandering star began to recede, जैसे जैसे wandering star पीछे हटा, जैसे ही हटा, the tidal pull was so great. उनकी जो gravitational forces थी wandering star की, जो कशिश थी वो इतनी ज्यादा हो गई कि जो mountain थी detached from the sun, fell into the space and began to revolve around the sun. ठीक है, begin to revolve around the sun. वो फिर जो पीसेस गिरे थे वो सन के इर्द गिर्द
चक्कर लगाना शुरू हो गए और फिर वो इट बिकेम द solar system. Next question number 4 is what are the planets and how did they come into existence? सबसे पहला से इसमें दो पोर्शन है. What are planets and how did they come in? दोनों क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है. आपने क्या लिखना है कि ये हेवनली बॉडीज है, ये सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल जो अल्लाह ने बनाई हुई है. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज. Some are too hot and some are too cold. ये आप इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते हैं. एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? ये कैसे बने थे? तो वही जो आपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आंसर लिखना है कि जब एक वॉन्डरिंग स्टार सूरज के पास आया, इट रेज्ड माउंटेन्स ऑन इट. व्हेन ए वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, इट रेज्ड माउंटेन्स ऑन इट. ड्यूरिंग इट्स रिसीड, जब वो पीछे पीछे हटा, the mountain broke into pieces called planets, and our earth is one of them. फिर है फिफ्थ क्वेश्चन. Why is there no life on stars? Stars are burning masses. ठीक है. Some stars are too hot, some stars are too cold, that life cannot exist. अब life के लिए वो certain उसने कहा था, certain physical condition, आपके लेसन में उसने बात की थी कि life needs certain physical condition of which the temperature is most important. अब आपने physical conditions में आपने 1 2 3 वो चीजें दिखनी है. सर्टेन फिजिकल कंडीशन तो उन्होंने वर्ड बताया है आपको, लेकिन सर्टेन फिजिकल कंडीशन के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर, OPTIMUM, ऑप्टिमम. ये 3 कंडीशंस हैं एंड ऑफ विच द टेम्परेचर इज most important, and such physical conditions are not present on the stars. इसलिए ये मेन रीजन है why there is no life on the stars. The absence of certain physical conditions are not present on stars. Certain physical conditions, तीनों चीजें आपने साथ उसके लिखनी है. तो आपका आंसर जो होगा वो लाइफ नीड कुछ इस तरह से होना चाहिए कि लाइफ नीड सुटेबल कंडीशन फॉर इट्स एक्सिस्टेंस. लाइफ नीड्स certain physical conditions for its existence, of which the temperature is the most important. Such physical conditions are not present on other stars. That is why there is no life on stars. ठीक है. Next question है question number 6. Write a note on the beginning of the life on the earth. अच्छा, अब ये आपका जो है beginning of the earth है. Nobody knows when, how and why the life came into existence. सबसे पहले तो आपने ये लिखना है. फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है कि it began from the simple humble beginning, right? तो पहले तो लिखना है कि कोई नहीं जानता how, when and why life came into life begin on earth. फिर आपने कहा कि it began from a simple beginning with the which has the capacity to reproduce itself before dying. ये आपके एग्जैक्ट उन्होंने दिया हुआ है कि हुआ क्या था. और फिर आपने इसमें लिखना है कि with the passage of time it became more complex and aesthetic sense साथ शामिल हो गई, फिर religion शामिल हो गया, फिर ये 4-5 चीजें आपकी टेक्स्ट में उन्होंने लिखी हुई हैं. Write a note on the start up. Nobody knows when, why, and how the life came into existence. Life began on Earth, but it began with the humble and simple beginning. With the passage of time, it became more complex. और उसके बाद फिर उसमें religion, aesthetic sense, likes and dislikes ये शामिल होती चली गई. Why? अच्छा, next क्या है जी? Question number 7 है. Question number 7.
Why is the universe of which our earth is a part so frightening? Very important question. एक जो है वैसे तो सारे ही फर्स्ट चैप्टर वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है जो है ये वाला और फिर गिव एज मैनी रीजन, ये आपका एक रीजनिंग वाला एक पूरा लॉन्ग पैराग्राफ है उसमें 3 to 4 द loneliness, the littleness, the stretches of time and space, unimaginable distances and the littleness of our home, ये सारी 4-5 रीजंस हैं जो आपने उसमें बतानी है. The universe is so frightening because of the immense distance, great stretches of time, littleness and loneliness, the impossibility of existence of life. ये 4-5 चीजें हैं जो आपने अपने लेसन में अपने आंसर में ये देनी है. उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. What in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Should be the necessary condition. Do such condition generally exist? Do such condition, दो इनके इसके भी दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के. What in your opinion should be the necessary condition? वही certain physical conditions are necessary, water, oxygen and optimum temperature, and the optimum temperature is the most important. Do such condition generally exist? No. No, इसका आंसर सेकेंड पार्ट का क्या है? No, such generally such conditions are not exist. It is guessed that such conditions can exist in the narrow belts. So this is the last question. अच्छा, आपको साथ बता दूं कि don't write too long question, too long answers. आपको उन्होंने क्या कहा होता है? 3 to 5. Your answer should be direct. कोई बेस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इंट्रो देने की जरूरत नहीं है. आपने 3 to 5 लाइंस और सेंटेंसेस में अपना आंसर वाइंड अप करना है. लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि 3 to 5 लाइंस और सेंटेंसेस. 6th लाइन टच नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में. मैक्सिमम 6 कर लें चले, लेकिन 7th लाइन long answers are not entertained in your exams. फिर से मैंने आपको इसीलिए ये अलहदा से लिख दी है. उन्होंने उधर बाकायदा लिखा होता है, आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में भी लिखा होता है कि डोंट राइट योर आंसर विद इन द 3 to 5 लाइंस और सेंटेंसेस. ठीक हो गया जी. ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए सारे. जब आप उसके आंसर लिखें, take the help from your textbook. You must take the help from textbook is the ideal source for your question answers, right? फिर से बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक जो है वो आपने you have to consult while writing your answers. While writing your answers, you have to consult your textbook. उसके बगैर गुजारा नहीं है. फिर आपका आता है this, yes. ये क्या है? आप कैन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, बट बाज़ औक़ात हम पास्ट टेंस देते हैं. पास्ट टेंस के द क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेडली इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चंस. पास्ट टेंस में क्या है? हाउ डिड अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये वही आपका सिर्फ उन्होंने जो स्टेटमेंट है, जो वर्ड्स हैं, वो उन्होंने चेंज करके दी है. हाउ डिड अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4, 2 and 3 जो है आपके एक्सरसाइज का, ऑलमोस्ट वही है. व्हाई इज देयर लाइफ ऑन अर्थ. अच्छा, आपकी एक्सरसाइज में था व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स. यहाँ पर क्या है? व्हाई इज देयर लाइफ ऑन स्टार्स. इसमें क्या है कि ड्यू टू द सर्टेन फिजिकल कंडीशन, वो जो उन्होंने बात की थी. फिर आपने वहां साथ बताना है, सर्टेन ब्रैकेट में बता दें, सर्टेन फिजिकल कंडीशन में वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर मैं वैसे कहती होती हूँ.
ऑप्टिमम के मुनासिब दर्जा हरारत, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत तो बहुत ज्यादा भी होते हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के मुनासिब तरीन जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं आर नेसेसरी फॉर द लाइफ. Life on earth, there is life on earth because there are certain physical condition, या certain physical conditions are present on earth. और उसमें आपने साथ बताना है, is human life confined to earth only, if so why? अच्छा, पहले तो आपने यस और वो आपने बताना है कि क्या सिर्फ जो जिंदगी है, जो ह्यूमन लाइफ है, सिर्फ अर्थ पर है. पहले आपने इसका आंसर देना है और फिर आपने उसको जस्टिफाई करना है. इफ सो, अगर है, अगर सिर्फ, तो रीजन बताएं. is yes, human life is confined to earth only because it fulfills the requirement, it fulfills the essential characteristics for the existence of life. uh, the earth has the earth fulfills the condition of certain physical condition. तो ये उसमें, ये भी आपका उसमें almost exercise वाला question है. arrangement of the answer बदलती है, right? vocabulary almost वही होती है, vocabulary change नहीं होती, सिर्फ आपका arrangement of the answer जो है वो change हो जाता है. Next is, what conditions are necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? What conditions are necessary for the kind of life we know to exist? ये वही बार बार वो certain physical condition वाला है. ये आपके past tense में repeatedly questions आए हुए हैं. बच्चे सिर्फ इसको देख के घबरा जाते हैं कि wording फर्क है. wording तो wording फर्क है, but material almost वही. आप समझो कि to go uh, to go round the bush, जो हम जिसको हम कहते हैं कि इधर उधर की चेंज करके मटेरियल आपने विद इन द टेक्स्ट ही लेना होता है. what conditions are necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? वही है, some stars are too hot, some stars are too cold, life cannot exist in such conditions. So uh, certain physical conditions are necessary for the existence on other heavenly bodies. ठीक है. But certain physical conditions are necessary for life to exist on other heavenly bodies. फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो पास्ट ट्रेंड्स में रिपीटेडली आया हुआ है, हाउ बिग आर स्टार्स एंड हाउ डू दे ट्रेवल. दो क्वेश्चन इकट्ठे इन्होंने किए हैं. हाउ बिग आर स्टार्स. Stars are so big. Stars are so big that hundreds and thousands and hundreds of Earth can be packed inside the stars, and even then there is the room. There is additional room. The room is spare for more Earth. ये जो मैंने आपको इमेज दिया था अपने फर्स्ट लेक्चर में भी और सेकंड लेक्चर में भी, वो आप इमेजिन करें that even that the thousands, hundreds and thousands of earth can be packed inside the stars, and even then the room is spare. ये है, इतने बड़े हैं स्टार, ये आप कंपैरिजन कर लें. और फिर हाउ डू दे ट्रेवल. दे ट्रेवल इन कंप्लीट loneliness. Some stars travel in groups and they are called the Milky Way, but most of the stars travel in loneliness. वो अकेले अकेले सफर करते हैं. They travel at the distance of million miles. That is why it is seldom that a star come across to another star. फिर क्या है, what is absolute zero? What is absolute zero? That I think that was the -273 डिग्री सेल्सियस था और फ़ारेनहाइट कुछ और था. ये आपने बताना, ये आपके शायद केमिस्ट्री के हवाले से भी कुछ बनता है, लेकिन यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट. फिर से बता रही हूँ, आपकी जो टेक्स्ट में आंसर है, क्योंकि सबको वो साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता है, तो जो इंग्लिश का टीचर है उसको आपने जो टेक्स्ट के हवाले से आंसर है आपने वो देना है. डोंट गिव द जनरल आंसर. अच्छा, व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स. व्हाट आर द टेम्परेचर. ये भी आपके दो क्वेश्चन उन्होंने एक ही जगह इकट्ठे किए हुए हैं. एंड व्हाई लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द टेम्परेचर बेल्ट्स. टेम्परेचर बेल्ट्स आर द नैरो एरिया in between the extremely hot and extremely cold temperature. ये है.
ठीक है, और उसके बाद वाई लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड टेम्परेचर बेल्ट. Outside the temperature, the life can burn, the life can be frozen. जिंदगी या तो जम जाएगी या बर्न हो जाएगी, या जल जाएगी. दैट इज वाई लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट. टेम्परेचर बेल्ट वो ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला एरिया है जहां पर इट इज गेस्ड, ये अंदाजा किया जाता है कि लाइफ वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है. फिर है व्हाट आर द टोटल नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. ये भी आपका पास्ट टेंस में से है. टोटल नंबर्स ऑफ द स्टार्स, it is guessed, it is estimated by Sir James Jeans that the total numbers of the stars are almost equal to the total grains of sand in all the seashores of the earth. कि जितनी सी शोर्स पर रेत के जर्रे हैं उतने या उससे ज्यादा भी यूनिवर्स में स्टार्स हो सकते हैं. ठीक है जी. So this you can see the past trends. आपके almost वही चीजें हैं जो आपके एक्सरसाइज में है, but you do need the additional questions. You do need to prepare the additional questions from the examination point of view. अच्छा, अब आपको मैं बताती चलूं कि आप you need to buy the book. मैंने आपको पहले भी बताया था कि you should take the sunshine, right? आपने सनशाइन लेनी है प्रिपरेशन के लिए. और सनशाइन सनशाइन का फायदा ये होता है कि उसमें उन्होंने काफी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस दिए होते हैं. यू कैन टेक द सनशाइन और द innovative. These books are pretty good for the preparation of your paper from सनशाइन. कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन लेना है आपने. कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन लेंगे तो वो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी. कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन ये मैंने इसलिए लिख दिया है, दिस इज बाय प्रोफेसर मुशर्रत साहिब, और जो इनोवेटिव है दैट इज बाय इमरान हाशमी. ठीक है जी. अब ये आपने जब आप इसको ले लोगे, अपने क्वेश्चन आंसर जैसे प्रिपेयर करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी. अगेन फॉर question answers preparation, buy the Sunshine Comprehensive Edition and Innovative. ये आपकी preparation, but text is the super duper resource for your preparing your question answers. ठीक है जी. इसके बाद next comes the क्या आता है जी. मैं थोड़ा सा टेक्स्ट एनालिसिस करके बताती हूँ कि जब आपने टेक्स्ट प्रिपेयर करनी है तो उसमें आपने किन चीजों का ध्यान रखना है. While reading the text, you may come across, while preparing your paper or for the entry test point of view, you may come across the MCQs. ये आपके सामने स्क्रीन पर है. इसको मैं पढ़ती हूँ और उसके साथ साथ आपको पता चलेगा. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो बेल्ट्स. ये आपने पढ़ते हुए बहुत ध्यान देना है. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. अच्छा, ये मैं आपको neither too hot nor too cold. अच्छा, अब दूसरा क्या है. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो बेल्ट वेयर द टेम्परेचर इज either too hot nor too cold. फिर है लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो बेल्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज neither
too hot or too cold. और लास्ट वन है life can exist only in the narrow bands where the temperature is neither too hot and not too cold. आप बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है नाइदर और नॉर का. नाइदर और आप तकरीबन एक जैसे सारे, ये एंड वाला पोर्शन सिर्फ फर्क है, स्टार्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा है. तो ग्रामेटिकली जो नाइदर और नॉर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, नाइदर और नॉर का कॉम्बिनेशन होता है. लेकिन इसमें ये होता है कि अगर नाइदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होगा, नाइदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन होना चाहिए, और अगर नाइदर के बाद एडवर्ब है तो नॉर के बाद भी. आप देखिए द डी और ए में बहुत थोड़ा फर्क है, ठीक है, बाकियों में आइदर और नॉर है, नाइदर और है, लेकिन जो ए और डी है उसमें सिर्फ इस टू का फर्क है, ठीक है. नाइदर के बाद अगर टू डबल ओ है तो फिर नॉर के बाद भी टू डबल ओ होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ टू इधर का फर्क है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, neither too hot nor too cold. The next is sun and the other stars we see in the sky are extremely hot, far too hot for life to exist on them. अब ये भी एक ग्रामेटिकल होता है, far too hot for life to exist. Too hot for life to exist. अच्छा, अब इसमें क्या है, द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट, far too hot for life to exist on them. The sun, सी क्या है जी, the sun and the sun the sun and the stars we see in the sky are extremely hot, far too hot for life to exist on them. D है, the sun and the other stars we see in the sky are extremely hot, far too hot for the life. अब अच्छा, इनमें क्या फर्क है, अब यहाँ देखिए, आप एक रूल होता है कि जो द सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो हेवनली बॉडीज हैं, उनके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं द. अब आप ये देखें कि सन के साथ यहाँ द नहीं यूज किया हुआ, सो दिस इज इनकरेक्ट. द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने द सन एंड द स्काई के साथ उन्होंने आर्टिकल यूज किया हुआ है. यहाँ क्या है, द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई, क्या है, द सन, सन के साथ तो आर्टिकल है लेकिन स्काई के साथ आर्टिकल नहीं है. फोर्थ वन क्या है, द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट. द सन, the sun and the other stars we see in the sky are extremely hot, far too hot for life to exist on them. अच्छा, अब देखें यहाँ पे भी उन्होंने द सन दिया है और यहाँ पे द स्काई दिया है, लेकिन यहाँ पर वो फर्क कर गए हैं, फार टू हॉट और यहाँ पर फार टू हॉट, दोनों में यहाँ पे फर्क है. बेसिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पे है, इधर फार टू सिंगल ओ के साथ नहीं, डबल ओ के साथ आना चाहिए था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. और यहाँ क्या था पहले वाले में, डी. देखिए इतना क्लोज इन्होंने दिया हुआ होता है, और लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि होने वाली बात नहीं है. while reading the text you must pay attention towards such minor things. so यहाँ आर्टिकल की तो उन्होंने कंडीशन पूरी कर दी है बी में, द सन एंड द स्काई, इसी तरह द सन एंड द स्काई, लेकिन यहाँ पर गलती हो गई कि फार टू हॉट, यहाँ पे फार टू हॉट, फार इतनी ज्यादा गर्म है कि लाइफ वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये जो होता है फर्स्ट टू के साथ एडजेक्टिव होता है
और दूसरे टू के साथ वर्ब होता है। ये भी आपकी ग्रामर की बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। द लास्ट वन, स्टैंडिंग इन अ लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। स्टैंडिंग, ये भी आपका वो जो कॉजेज वाला पैराग्राफ है ना, जिसमें बिकॉज फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ दिस वी आर फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ दिस, ये उस लॉन्ग पैराग्राफ के ऑलमोस्ट स्टार्ट से है। Standing in a little grain of sand, it is tried to discover the nature and purpose of the universe. फिर दूसरा है standing upon. अब यहाँ पे on था, यहाँ पे upon है। फर्स्ट में on था, सेकंड में upon है। Standing upon a little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe. दोनों में सिर्फ ये on and upon का फर्क है। थर्ड इज standing on a little grain of sand, we try. पहले में था इट इज ट्राइड, दूसरे में है वी ट्राई, और तीसरे में भी है वी ट्राई। और यहाँ पे ऑन अपॉन का फर्क था, यहाँ पर भी ऑन आ गया। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, वी ट्राई टू डिस्कवर, ये कंप्लीट बनता है वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। ये जमीन के छोटे से जर्रे पर खड़े होते हुए वी ट्राई टू डिस्कवर, हम ये तलाश करने की कोशिश करते हैं दो चीजों को, द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, के इस कायनात को बनाने का मकसद क्या था। फोर्थ वन क्या है, स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, वी ट्राई डिस्कवरिंग। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फर्क आ गया। वी ट्राई डिस्कवरिंग द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। आप चारों को पढ़ने के बाद आप ये देखो कि ग्रामेटिकली स्टैंडिंग अपॉन एंड वी ट्राई टू डिस्कवर, इसका करेक्ट ऑप्शन है जी स्टैंडिंग आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, वी ट्राई टू डिस्कवर। स्टैंडिंग ऑन है बनता है, अपॉन नहीं होता। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सो इस सारे तीनों एमसीक्यूज को देखते हुए you should realize that how important it is to read the text very carefully, कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इन छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को, एडवर्ब को, मोस्टली प्रपोजिशंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं, कि प्रपोजिशन बहुत थोड़ी सी फर्क हो जाए। जैसे ये देखें, वी ट्राई टू डिस्कवर, वी ट्राई टू, ये दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, तो फर्क कहाँ पे आता है, अपॉन एंड ऑन का। स्टैंडिंग ऑन होता है और स्टैंडिंग अपॉन नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। और फिर से बता दूं कि अपनी बुक्स खरीद लें, सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन ले लें, और उसके साथ यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम इनोवेटिव। सनशाइन में क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे एसेज भी हैं, एसेज इनोवेटिव में भी अच्छे हैं। यू कैन टेक, एक्चुअली इतनी बड़ी क्लास में ना ये ऐसा नहीं होता कि जी आप एक ही बुक से सब कुछ कर लेते हैं। You have to consult 1, 2, 3 books for the better preparation. The more you work hard, the more you will get the marks. The more you go through the books, the more you will get the knowledge. ठीक है जी, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी, और I just remove all these marks from the screen so that, thank you very much. Allah Hafiz, take care.